अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये शोबा सेहत, शोबा होम्योपैथिक के मुताबिक मैंने ये सफ़र किया है जर्मनी के एक ऐसे शहर का जो बादन-वुर्टेम्बर्ग सूबे के शहर काल्फ में। यहाँ एक पहाड़ी में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ जाकर हमने एक ऐसी सुरंग तलाश की है जो पहाड़ी के दामन में, बिल्कुल पहाड़ी के अंदर एक ऐसी सुरंग है जिसमें सिर्फ एक आदमी गुजर सकता है और 1.5-2 किलोमीटर पहाड़ी के अंदर वो घूमती है। उसमें ऐसे केमिकल, ऐसे मादनियात, ऐसी ये हमारे जो होते हैं ऐसी चीज़ें हैं, गंधक वगैरह, चांदी, सोना, सिल्वर, कि उनकी जो गैस है जब वो निकलती है तो वो दमे के मरीज़ को या तपदिक के मरीज़ को फ़ायदा करती है। उसमें हम गए हैं तो आपको भी दिखाते हैं हम कैसे गए हैं। लोग टिकट लेते हैं, फिर उसमें दाखिल होते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं, फिर हेलमेट पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि वो पहाड़ी जो है पलस्तर नहीं हुई, उसमें से कुछ पत्थर आगे पीछे निकले हुए हैं, कोई पत्थर सिर को लगता है तो, क्योंकि वो 6 फुट से ज़्यादा नहीं है ऊंची। तो इस अपनी हिफाजत की खातर ये ज़रूरी है कि पहले आप हेलमेट पहन लें। और ये रिसर्च है इनके डॉक्टरों की, इन्होंने मेहनत करके सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर निकाल कर, यानी कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं की, हाथ से काम करके उन्होंने ये सुरंग बनाई है। मशीनरी से हो सकता है कोई पत्थर ज़ाया हो जाता हो या फ़ायदा ना हो, तो बहरहाल उनका एक तरीक़ था कि उसने ये बनाया है लोगों के लिए, और लोगों को शिफा होती है इसमें। इसकी गैस जब लेते हैं तो उसमें सांस की तकलीफ़ वालों को, फेफड़े की तकलीफ़ वालों को आराम आता है और लोग जौक दर जौक इसे देखते हैं। ये एक अजूबा है जो पहले मैंने भी कभी नहीं देखा। ये पहली दफ़ा ये जर्मन ने इसको दरियाफ्त किया है। और अब हम चलते हैं उस सुरंग की तरफ। Begann der richtige Bergbau, wie wir ihn hier sehen, also mit einem Stollen, erst so 1000 nach Christus. Dabei entstand dann auch der Wasserstollen. Der hat eine Länge von 2 Kilometern und die Bauzeit für den Wasserstollen betrug um die 100 Jahre. Man muss sich vorstellen, eine Gruppe zwischen 5 und 8 Bergleuten, die kam am Tag so 2 bis 4 Zentimeter voran. Das war also ein sehr beschwerlicher Fortschritt, was auch vor allem an dem Quarz lag, der sich im Sandstein befindet. Denn beim Abbauen von Quarz bekamen viele Bergleute die sogenannte Staublunge, die wird auch Silikose genannt, und an der sind viele Bergleute verstorben. Darum wurden die im Durchschnitt auch nur ca. 35 Jahre alt. Die Blütezeit im Neubuhlacher Bergbau, die ging dann vom 11. bis zum 15. Jahrhundert, und der letzte Abbauversuch, der wurde noch 1920 unternommen, und zwar von der Heller Glücksgesellschaft. Dazu aber später mehr. Genau. Jetzt noch kurz was zur Arbeitsweise. Neben den traditionellen Werkzeugen standen dem Bergmann damals noch die sogenannte Feuersätze zur Verfügung. Dabei handelt es sich einfach um einen Holzstapel, den der Bergmann vorm Gestein aufgesetzt hat und entzündet hat. Und durch die Hitze wurde das Gestein dann brüchig und rissig, und dann konnte der Bergmann es leichter abtragen. Nachher gibt es auch noch eine Nachbildung von so einer Feuersätze zu sehen. Genau. Ja, ich denke, das waren jetzt schon die wichtigsten Sachen. Alles Weitere folgt dann im Berg.
Ja, noch kurz die Temperatur im Berg, die beträgt immer so zwischen 7 und 8 Grad. Genau. 7 und 8 Grad. Egal wie warm es wird. Ja, es ist Ja, also es ist recht konstant. 7 से 8 डिग्री अंदर जो है ना Genau, dann. ठंड है। Nee, das ist kein Salz. Das ist ja kein Salzberg. Er liebt Salz. Hallo, Salz gibt es in Pakistan। और 100 गल्लां ने कितनी बस वही दसन ने मुझे भी यार ठीक है। Hallo, Sie gehen mit? Ja. Gehen Sie mit? Ich muss jetzt nur noch kurz, wir warten am besten jetzt noch kurz, dass die andere Gruppe draußen ist, weil sonst kreuzen wir uns mit der und dann wird es ziemlich eng. Ja, Die müsste aber eigentlich gleich kommen, denke ich. Also die 30 Minuten können wir laufen, ja? Circa 30 Minuten, ja. उनने उसने कहा कि यहाँ अंदर जा आगे जाएंगे ना वाई जो पहली हाली किस बाबा वो अंदर है बाबा रखा पता है देखते हैं अंदर वो है और वो बस आगे वो उसने बताते रहता है ये अंदर वो बाबा है फिर उन्होंने क्या 30 मिनट आगे वो उसने चीज़ें आगे बतानी है रास्ते में अभी उसने आधा बताया फिर रास्ते में और बताएगा वो है अब ये बता रहा है और उसने आपको बताया कि इतनी ग्राड है 7 या 8 ग्राड जाके पहन के आओ फिर चलो कोई नहीं अब जैसे भी है अब चलना तो है ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चल लो बाजी का Peinlich नहीं है ये आपको Sicherheit करती है Weil hier halt immer ein Durchzug ist. Heißt, da kommt immer Luft. मैं बता दूँ Das ist sehr wenig. आपको बहुत डर लगे Let's go. अच्छा हाँ जी आधा घंटा चलते चलते फिर जब जिस्म गर्म हो जाता है ना तो ठंड नहीं लगती Da drin ist viel. Jetzt kommt die andere Gruppe, die lassen wir kurz raus und dann können wir starten. Wir machen am besten kurz, gehen zur Seite, dass die hier durchkommen können. Nee, auch zur Seite kurz. इस तरफ सफान सफान इधर हो जाओ। सफान इधर कोई नहीं कोई नहीं। अगे भाई ने होना ते अगे 2 बच्चे फिर अबू जी फिर सफान सफान आ मेरे पास आओ सफान नहीं ये लोग वापस आ रहे हैं। बेटा मेरे पास आओ मैंने कहा इन्होंने आधा घंटा कंच फोन है इस सड़क में गुजारा है। अब ये बाहर आए हैं और इसके बाद हम जाएंगे तो फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। फिर आपको बाहर आकर फिर दिखाएंगे और बताएंगे कि अंदर क्या है। बहरहाल ये कंच फोन है ये जाएंगे ठीक है ये भी है अंदर ही आने चलो Genau, चलो dann gehen wir jetzt los und der Letzte macht dann, wie gesagt, bitte die Tür zu. Danke. सफान आप पीछे सफान सफान और मेरे ये लोग जा रहे हैं अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये बैरक में लंबे लंबे सांस लेंगे और फिर ये जनाब सुरंग है। ये लोग अंदर जा रहे हैं। छोटी सी सुरंग है। एक बंदा ही एट ए टाइम अगर दूसरा बंदा गुजरे तो मोटे के साथ मोटा लग के गुजरता है। Auflauf, ओके Türe zumachen. या Viel Gas. ये अब आपको अंधेरा नजर आएगा लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनियाँ थोड़ी रोशनी जो है वो आ रही है। इन्होंने बल्ब छोटे छोटे लगाए हुए हैं ताकि नजर आए। ये ऐसी सुरंग है सिर से ऊपर 6 फुट ऊंची है और 3 फुट चौड़ी है। ये सुरंग ये पानी भी ऊपर से आ रहा है कभी कभी क्योंकि पहाड़ का दरमियान है ये अब हम
पहाड़ के अंदर दाखिल हो गए हैं और ये इन्होंने प्लास्टर इसलिए नहीं किया दाएं बाएं कि जो मिटाल है, जो मादनियात हैं, उनकी आबो हवा बाहर निकले और वो बंदों को ये 4 बोर्ड भी लगे हुए हैं तो ताकि सांस में वो दाखिल हो। तो इसलिए अंदर जो है 8-9 ग्राड ठंड है, गर्मी नहीं है। ये लोग अब यहाँ 2 रास्ते हैं और इस तरफ। यहाँ कुछ लोग अंदर फिर और सड़कें बनाई हुई हैं, एक ये सीधी जाती है, एक वो बाएं तरफ है, एक उसके बाएं तरफ है। Genau. Erste Besucher hier im Neubulacher Bergwerk, die unter Asthma oder anderen bronchialen Beschwerden litten, die merken irgendwie, dass ihnen das Atmen hier drin leichter fiel. Und darum wurde noch 1973 ये साथ इंस्पेक्टर है। Hallo. Ihr redet. Ja, und ich bestelle mir gefilmt werden. Dann kann er nicht das alle filmen. Genau, das sind auch Leute. Hallo. Die können ruhig ein bisschen leise sein. Die wollen nicht, dass du filmst. अब हम वापस जा रहे हैं। ये शुरू से हमारी वापसी हो गई है, इंशाअल्लाह जल्दी बाहर आ गया। ये मैं आपको बता दूं, अभी अगर कोई यहाँ आना पड़े तो हेलमेट ज़रूर सिर पे रखना, क्योंकि मुझे 2-3 दफ़ा ऊपर पहाड़ी सिर में लगी है, तो अगर हेलमेट ना होता तो ज़ख्म हो जाना था। तो इसलिए मेरा तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ लंबे आदमी हैं 6 फुट से करीब हैं, तो वो ज़रूर हेलमेट पहने, बिल्कुल हेलमेट के बगैर इसके अंदर दाखिल ना हो। दोनों तरफ पहाड़ी निकली हुई है ख़तरनाक, और सिर के ऊपर भी जो सिर को लगती है वो भी पहाड़ी बगैर प्लास्टर के है। प्लास्टर इन्होंने इसलिए नहीं लगाया कि इनको हवा चाहिए मादनियात की। तो वो फायदेमंद है इंसान से, इसलिए यहाँ इन्होंने ये तो नहीं रास्ता है तो हो रहा बाहर जाने वाला रास्ता नहीं, ये तंग हुआ ये सरों की हो रही। हाँ इतने तो दूसरा आदमी लंघ ही नहीं सकता, इसीलिए उसने पहले लाइनें बना ली है ना बच्चों की। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, अच्छा अब ज़रा खुला है। ओए ओए इतने बंदे का वैसे ही इलाज हो जाता डर डर के। Kinder, ruhig. Und
mal alle noch ein bisschen auf, dass alle mal hier auch Jungs. ये आ गया उनको भी आने दो